پشاور کے علاقے فقیر آباد میں دہشت گردوں کی فائرنگ، ڈی ایس پی ریاض الاسلام شہید، بیٹا زخمی ہو گیا۔ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ سرور کونو مکان نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد کے جشن کی تیاریاں عروج پر، گلیوں بازاروں میں چراغاں، فضاؤں میں مرحبا صلی اللہ کی صدائیں۔ سندھ حکومت کا 12 ربیع الاول کے موقع پر صوبے بھر میں 30,000 پولیس اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ، راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ، 12 ربیع الاول کے لیے ٹریفک پلان بھی جاری۔ عدالتیں آزاد ہیں اور ہمارے لیے سب سے اہم چیز انصاف کی فراہمی ہے۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے واضح کیا ہے کہ کسی کو خوش کرنے یا میڈیا کے دباؤ میں آ کر فیصلے نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین کا مقصد اداروں کو کمزور کرنا ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مملکت مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ نون لیگ کی حکومت اداروں کو مضبوط بنانے پر پختہ یقین رکھتی ہے۔ ملکی ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ سانحہ حویلیاں کی تحقیقات جاری، انویسٹیگیشن ٹیم نے جائے حادثہ سے مزید ثبوت اکٹھے کر لیے۔ اے ٹی آر طیارے کا بلیک باکس ڈی کوڈ کرنے کے لیے فرانس بھجوا جائے گا۔ شام میں جنگی طیاروں کے حلب میں باغیوں کے ٹھکانوں پر تازہ حملے، علاقے کو شرپسندوں سے آزاد کرانے کے لیے زمینی کارروائی بھی جاری۔ لڑائی کے باعث 20,000 سے زائد شہری نقل مکانی پر مجبور۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں، شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر سرما کی پہلی بارش، مری میں ژالہ باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ مزید کہیں گے، خبر شامل کریں گے پشاور سے، جہاں دہشت گردوں کی فائرنگ سے ڈی ایس پی ریاض الاسلام شہید اور ان کا بیٹا زخمی ہو گیا۔ پولیس حکام کے مطابق دہشت گردی کا واقعہ 4 صدار روڈ پر فقیر آباد کے علاقے میں پیش آیا۔ ڈی ایس پی ریاض الاسلام اپنے بیٹے کے ہمراہ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد گھر جا رہے تھے کہ دہشت گردوں نے ان پر فائرنگ کر دی۔ باپ بیٹے کو زخمی حالت میں لیڈی ریڈنگ ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم ڈی ایس پی ریاض الاسلام جہاں پر نہ ہو سکے۔ ریاض الاسلام ان دنوں انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ میں تعینات تھے۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق ڈی ایس پی کے بیٹے کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ پولیس نے واقعے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے 12 ربیع الاول کے موقع پر صوبے بھر میں 30,000 پولیس اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں 12 ربیع الاول کے لیے سیکیورٹی پلان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے سندھ بھر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کے ساتھ پولیس اور رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے درمیان رابطہ مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ نے بتایا کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر صوبے بھر میں 30,000 پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ اسی حوالے سے مزید آپ کو بتائیں، راولپنڈی میں 12 ربیع الاول کے لیے ٹریفک پلان جاری کر دیا گیا ہے۔ میلاد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوسوں میں ٹریکٹر ٹرالی، ٹرالرز اور ٹرک کے داخلے پر پابندی عائد ہوگی۔ ٹریفک پولیس کے مطابق شہر میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ 11 ربیع الاول کو شام 4 بجے سے مکمل بند کر دیا جائے گا۔ میلاد کے جلوسوں کے پیش نظر 12 ربیع الاول کو مری روڈ سے صدر جانے والی تمام ٹریفک کو راول روڈ پر موڑ دیا جائے گا، جو ٹیپو روڈ سے ہوتی ہوئی مریر چوک سے صدر جائے گی۔ اس کے ساتھ مریر چوک سے اسلام آباد جانے والی ٹریفک کو کچہری چوک کی جانب ڈائیورٹ کر کے براستہ ایئرپورٹ روڈ اسلام آباد بھیجا گیا ہے۔ کالج چوک، راجہ بازار، بانساوالا چوک اور بنی چوک سے جلوس کے روٹ پر کوئی ٹریفک نہیں آ سکے گی۔
चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अनवर ज़हीर जमाली ने कहा है कि किसी को खुश करने के लिए या मीडिया के दबाव में आकर फैसले नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट की क़याम की 150 साला तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने कहा कि अदालतें आज़ाद हैं और हमारे लिए सबसे अहम इंसाफ की फराहमी है। उन्होंने कहा कि अदालती निज़ाम सिर्फ फैसले के लिए नहीं, इंसाफ देने के लिए है। उनका कहना था कि मौशरती बुराइयां मुल्क को खोखला कर रही हैं। दूसरे इदारे नाकाम हो तो अदलिया पर दोहरी जिम्मेदारी आयद हो जाती है। चीफ जस्टिस ने इंसाफ की फराहमी में लाहौर हाई कोर्ट की खिदमत को सराहा। आपको बताएं, इत्तलात और नशरियात की वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मकसद इदारों को कमजोर करना है, जबकि नून लीग का इदारों को मजबूत बनाने पर पुख्ता यकीन है। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि पनामा दस्तावेजात पर कमीशन न बनाने पर तहरीक इंसाफ लॉकडाउन का ऐलान कर रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में कमीशन बनाने की बात हुई है तो फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है। इस सवाल पर मरियम औरंगजेब ने कहा कि बिलावल का ताल्लुक जिस सियासी घराने से है उससे अच्छी सियासत की उम्मीद की जा रही थी। अगर बिलावल अपने मुतालबात सिंध हुकूमत में पेश करें तो सिंध हुकूमत बेहतरी की तरफ जा सकती है। डॉन लीग्स के हवाले से सवाल पर उन्होंने कहा कि डॉन लीग्स पर तहकीकात की रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म हतमी फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि परवेज़ रशीद का नून लीग से ताल्लुक उतना ही पुराना है जितनी खुद नून लीग पुरानी है। आने वाले दिनों में भी परवेज़ रशीद मीडिया से बातचीत करते रहेंगे। उन्होंने मुआशरे में मुस्बत तर्ज़-ए-अमल के लिए तामीरी तफरीक को निहायत अहम करार देते हुए बताया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जल्द सिनेमा इंडस्ट्री के लिए फंड्स का ऐलान करेंगे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि हवेलिया में पीआईए के तैयारे के हादसे में जाँ बहक होने वाली एयर होस्टेस सदफ फारूक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक एयर होस्टेस की मैयत को शनाख्त के बाद आज वरसा के हवाले किया गया। सदफ की नमाज जनाजा कलर सैयदा के गांव शाहबाग में अदा की गई। दूसरी जानिब हादसे में हलाक होने वाले चीनी बाशिंदे हैंगकांग के लवाहिकीन भी पिम्स पहुंच गए। ईडी पिम्स डॉक्टर अल्ताफ के मुताबिक हैंगकांग के भाई से डीएनए टेस्ट के लिए नमूने हासिल कर लिए हैं। उनका कहना था कि 2 गैर मुल्कियों की लाशों की शनाख्त अभी बाकी है और हस्पताल अमले की पूरी कोशिश है कि डीएनए सैंपलिंग मुकम्मल करके मैयतें जल्द अहले खाना के हवाले की जाएं। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि रेलवे की तबाही 1972 से शुरू हुई, जिसे दोबारा ठीक करने के लिए 10 साल चाहिए। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि वो इमरान खान नहीं जो रेलवे का निज़ाम 3 माह में ठीक करने का दावा कर दें। कराची में लोको शेड कैंट स्टेशन में रेलवे मजदूरों की तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि 40 साल से रेलवे ज़बूं हाली का शिकार है। अगर कोई ये कहता है कि 4 से 5 साल में सब ठीक हो जाएगा तो सब झूठ है। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि रेलवे अब भी 27 अरब रुपए के खसारे में है। मौजूदा हुकूमत ने रेलवे की बहाली और अपग्रेडेशन का चैलेंज कबूल किया है। 35 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं और खसारा भी बतदरीज कम कर रहे हैं। उनका कहना था कि हुकूमत 2017 के आखिर में रेलवे सर्विस स्ट्रक्चर का ऐलान करे और अगर अवाम ने 2018 के इंतखाबात में नवाज शरीफ को एक बार फिर मुंतखब किया तो काम की रफ्तार दुगनी कर दी जाएगी। वज़ीर रेलवे का कहना था कि सी पैक हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है जिसको हर हाल में कामयाब बनाना होगा। उनका कहना था कि कराची सर्कुलर रेलवे 20 साल पहले बनना चाहिए था, लेकिन किसी हुकूमत ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी। सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए सिंध हुकूमत से भरपूर ताउन किया जाएगा। और अब रुख करें शहर कायद का। आपको बताएं कि कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अमजद साबरी, फौजी और रेंजर्स एहलकारों के कत्ल समेत दीगर हाई प्रोफाइल केसेस में मुलव्विस आसिम उर्फ कैपरी और इसहाक बॉबी के खिलाफ हतमी चालान पेश करने के लिए पुलिस को 20 दिसंबर तक की मोहलत दी है। आपको बताएं कि आज समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर का यह कहना था कि आसिम कैपरी और इसहाक बॉबी के खिलाफ मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। दहशतगर्द पुलिस एहलकारों और फिरका वाराना टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस हैं। हतमी चालान पेश करने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़ सुनते हुए मुलज़िम आसिम कैपरी और इसहाक बॉबी के खिलाफ हतमी चालान पेश करने के लिए 20 दिसंबर तक मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान का कहना है कि बहरिया मुल्की मफादात को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज रखने के लिए पुराज़्म है। कराची में पाक बहरिया की 106वें और 15वें शॉर्ट सर्विस कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। 2 खवातीन और एक यमनी समेत 70 कैडेट्स ने पास आउट किया। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को एजाजात से भी नवाजा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद ज़काउल्लाह भी तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने पाक बहरिया में कमीशन हासिल करने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो अब पेशा वराना जिंदगी के अमली मरहले में दाखिल हो रहे हैं। कैडेट्स सख्त मेहनत को अपना शार बनाएं और शानदार रिवायात को बरकरार रखने के लिए कोशिश रहें। उनका कहना था कि मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, जिनसे निपटने के लिए अफवाज को जदीद महारतों से आरास्ता करना होगा। और अब आपको बताएं कि वजीर आला सिंध ने कराची के लिए 100 मिलियन गैलन पानी के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं कि गुज़श्ता रोज जिन लोगों ने अफरा तफरी पैदा की उन्हें नाकाम बना दिया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मुनीर साकी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने धाबेजी में 1 अरब 62 करोड़ रुपए की लागत से कराची शहर के लिए पानी के फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह किया। 100 मिलियन गैलन पर डे का पानी जो है इस मंसूबे के बाद बढ़ जाएगा। स्कीम्स बनाएं, पैसे अवेलेबल करके हम देंगे। इस शहर के सूबे के लोगों के लिए जो मुश्किलात हैं उनको हमने हल करना है। मीडिया से बातचीत करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि कराची और हैदराबाद में कुछ लोगों ने शरारत की कोशिश की, जिस पर फौरी काबू पा लिया गया। कानून और आइन के मुताबिक काम करने वाली हर सियासी जमात को सरगर्मियां करने की इजाजत है। हर पॉलिटिकल पार्टी को जो कि पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक काम करना चाहे उसको काम करने देना चाहते हैं, उसको जमहूरी हक है। और कल कुछ जो वाक़यात हुए वो कुछ लोग थे उनको उसी वक्त कंट्रोल कर लिया गया। वजीर आला सिंध ने एमडी वाटर बोर्ड को मुखातिब होकर कहा कि वाटर बोर्ड धाबेजी के मकामी लोगों का भी ख्याल रखे। उनका कहना था कि हुकूमत सूबे के मसाइल हल करने के लिए दिन रात कोशिशों में मसरूफ है। सरकारी मुलाजमतों पर से पाबंदी हटा दी गई है। मेरिट पर मुलाजमतें दी जाएंगी। कैमरामैन हबीबुल्लाह के साथ मुनीर साकी, ए न्यूज़ कराची। अब जानेंगे मौसम का हाल। आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं, जबकि कोयटा, योब डिवीजन, बालाई पंजाब, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात और सुबह के औकात में शदीद धुंध पड़ सकती है। अब जानते हैं आज रिकॉर्ड किए गए कुछ शहरों के दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 6 डिग्री सेल्सियस, लाहौर 9, कराची 18 और पेशावर 8 डिग्री सेल्सियस, कोयटा 3 डिग्री सेल्सियस, फैसलाबाद 10, कलात -2 और हैदराबाद 17 डिग्री सेल्सियस, मरी 4 डिग्री सेल्सियस, स्कर्दू -4, चित्राल 3 और मुजफ्फराबाद में 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।